Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, my dear student, today we are going to learn the subject that is your science and technology. This is your part 2 of standard 9. We had already completed chapter number 15, that is your life process in living organism. Today we are going to start chapter number 16. जो 15 चैप्टर था ये हमारा सेकेंड टर्म का पोर्शन है. दिस इज योर सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस सेकेंड टर्म, दैट इज योर चैप्टर नंबर 16, which is your heredity and variation. My dear student, what do you mean by heredity? Heredity means what? Heredity is nothing but it is the transfer of character from one generation to another generation via gene, जिसको हम heredity कहते हैं. What is actually variation? Variation is nothing but it is a slight difference in condition that we call it as variation. हम ये तमाम जो है टॉपिक, ये पूरा टॉपिक दैट इज हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इसका डिटेल कंसेप्ट ये लेसन में पढ़ने वाले हैं. कमिंग टू आवर नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस क्या होता है, उसके बाद हम डिटेल जो है हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट इनहेरिटेंट ट्राइट्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्राइट्स के बारे में पढ़ेंगे. एंड लास्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्रोमोसोम्स. Yes, my dear students, we had already completed the chapter number 15, that is your life process in living organism. That life process in living organism, we had started the second term and now we are going ahead to chapter number 16. जो अब तक के हमने chapter number 15 पढ़े थे, ये हमारा second term से portion start हुआ है. We had completed that chapter and now we are starting the new chapter, that is your chapter number 16, heredity and variation. My dear student, what do you actually mean by heredity? Heredity क्या है? Heredity is nothing but it is the passing on of physical or mental characteristic genetically from one generation to another generation via gene. ये चैप्टर सेम जो हेरिडिटी एंड वेरिएशन आपका 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर है एंड दैट सेम चैप्टर यू हैव टू रिवाइज इन द 10th स्टैंडर्ड. सो अगर आप अभी से अच्छे से समझेंगे तो आपको 10th में आसानी होगी कि व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएशन. दोनों में डिफरेंस आपको अच्छे से समझ के लेना है. सो हेरिडिटी इज़ नथिंग बट इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाया जीन. मैं इसके कुछ एग्जाम्पल आपको हेरिडिटी के देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आपके दादा को डायबिटीज़ था, इसी वजह से पप्पा को डायबिटीज़ है, उसी वजह से उनके बेटे को भी डायबिटीज़ है. अगर पप्पा को ब्रेस्ट कैंसर था, इसी वजह से आपको भी ब्रेस्ट कैंसर है और आने वाली जनरेशन को भी ब्रेस्ट कैंसर रहेगा. So what is this? This is the heredity. That means transfer of characters from one generation to another generation. एक पहले जो चीज़ थी वो आज तक की चलती है और आते वक्त भी चलती आएगी. That is the heredity. हम कहते हैं ये बच्चा बहुत ज़हीन है तो हम कहते हैं इसके दादा भी ज़हीन थे, इसके पापा भी ज़हीन है, इसीलिए वो भी बहुत ही ज़हीन है. Next, what do you mean by variation? Variation means what? Variation is nothing but, my dear student, it is a change or slight difference in condition. Example मैं आपको देती हूँ. Humans have different color eyes. सब इंसानों को तरह तरह की different color eyes होती है. किसी को blue होती है, किसी की black होती है, किसी की brown होती है. And dog have different length tail. सब कुत्तों की जो है दुम अलग अलग होती है. कोई जो है डॉग्स की टेल लंबी होती है, कोई छोटी होती है. This means that number 2 member of a species are identical. The difference between the individual in a species is called as variation. और ये दोनों difference between the individual के बीच में जो difference दिखाई देता है in a species, इसी को हम variations कहते हैं, my dear student. Coming toward next, हम ये चैप्टर में इनहेरिटेंस पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद हेरिडिटी, इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर अपीयरेंस के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट हम इसके बाद मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे एंड लास्टली जो हम पढ़ेंगे लेसन में दैट इज डिजीजेस ड्यू टू क्रोमोसोमल एब्रिएशंस. नाउ वी आर स्टडिंग दैट. Earlier we have seen that there is a great variation within every species in a nature. हम देख रहे हैं पहले से we had seen that there is a great बहुत सारे variation है within what? Within every species in a nature में. दुनिया में हर स्पीशीज़ में, एवरी स्पीशीज़ में हम क्या देखते हैं? वेरिएशन देखते हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फैक्टर्स दैट गिव राइज टू दिस वेरिएशन. हम क्या पढ़ने वाले हैं? द फैक्टर्स दैट गिव राइज टू दिस वेरिएशंस, माय डियर स्टूडेंट. नाउ कमिंग टूवर्ड इनहेरिटेंस. नाउ इनहेरिटेंस हमें क्या कहता है हम देखेंगे.
The branch of biology. Inheritance is what? Inheritance is a branch of biology which studies the transfer of characteristic of organisms from one generation to next. तो इसमें भी क्या है? ट्रांसफ़र होते हैं. क्या ट्रांसफ़र होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र होते हैं ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट. एंड जीन इन अ पर्टिकुलर, इसी को हम जेनेटिक्स कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. Now what are I mean to say you genes. What are genes actually? Genes is nothing but it is the basic physical unit of inheritance. Genes are passed from parent to offspring. मतलब माँ बाप से अपने बच्चों में ये ट्रांसफ़र होते हैं. इसी को हम जेनेटिक्स कहते हैं माय डियर स्टूडेंट. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ योर इनहेरिटेंस. नाउ कमिंग टूवर्ड नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय न्यू प्रोजेनी. प्रोजेनी का मतलब भी होता है ऑफस्प्रिंग. एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअली offspring? Offsprings are the young born of living organisms produced either by a single organism हम कहेंगे, और in the case of sexual reproduction two organism कहते हैं. Sexual reproduction मतलब क्या? Union of male and female gamete. इनमें दोनों का भी जो है हिस्सा है. That we call it as sexual reproduction. So हम देखेंगे ये क्या कह रहा है. Inheritance हमें क्या बतलाना चाह रहा है. New progeny is formed through the process of reproduction. नया प्रोजेनी बन गया है. Is formed from where? Through the process of reproduction, my dear student. Except for a few minor difference, थोड़े से डिफरेंस हमें दिखाई देते हैं. द ऑफस्प्रिंग शो ग्रेट सिमिलैरिटीज़ विद द पेरेंट्स. हम में जो है बहुत ही ग्रेट सिमिलैरिटीज़ है. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मम्मी जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँगी उसमें उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ही आप में ट्रांसफ़र हो रहे हैं. ऐसा कभी कभी होता है कि कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं कि ज़रूरी नहीं जैसे आपके मदर एंड फादर हो वैसे ही आप हो, आप अपने दादी दादा के जैसे भी. तो देर विल बी ए ग्रेट, कभी कभी सिमिलैरिटीज़ भी होती है, कभी कभी ग्रेट डिफरेंस, फ्यू माइनर डिफरेंसेस भी होता है. माय डियर स्टूडेंट्स, ये इनहेरिटेंस यही आपको समझाना चाहता है कि ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो माइनर वेरिएशन. जिस तरह हम में जो है कैरेक्टरिस्टिक हमारे पेरेंट्स के होते हैं, चाहे वो हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम मेरे फादर बहुत अच्छा ड्राइंग करते हैं, मैं भी बहुत अच्छा ड्राइंग करती हूँ, तो मेरे में क्या वो कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टर्स जो है ट्रांसफ़र हुए मेरे पापा से मुझ में. कब स्लाइटली माइनर हम कहेंगे डिफरेंस, दैट इज़ मेरे पापा बहुत शार्प है, बहुत टैलेंटेड है, ठीक है, मैं भी उतनी ही टैलेंटेड हूँ. मेरे पापा बहुत ही अच्छा लिखते हैं, ही इज़ वेरी ब्यूटीफुली राइटिंग, पर ज़रूरी नहीं मैं उनकी जैसा खूबसूरत लिखूँ. तो देयर विल बी अ स्लाइटली डिफरेंस, माइनर डिफरेंस जो हम देखते हैं. इसी तरह जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो माइनर वेरिएशन. ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअल, दैट मीन्स इसमें कोई एक गैमेट का प्रोडक्शन होता है, आइदर मेल और आइदर फीमेल, माय डियर स्टूडेंट. हाउएवर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कंपैरेटिवली ग्रेट वेरिएशन. यहाँ लिखा है कि हाउएवर दिस ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखाई देता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँगी यहाँ पर फेशियल फीचर होता है, अटैचमेंट ऑफ द ईयर लोब आपको दिख रहा है, इसके कान बहुत ही बड़े हैं, इसके कान थोड़े जो है दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है. द नोज एंड द लिप्स, फॉर एग्जाम्पल आपके मदर के जो है लिप्स इस तरह दिखाई देती है, तो आपकी लिप्स इस तरह दिखाई दे रही है. तो ये काफ़ी ग्रेट डिफरेंस वेरिएशन आपको दिखाई दे रहा है. हेयरलाइन, फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी की हेयरलाइन ऐसी है तो आपकी हेयरलाइन जो है इस तरह की दिखाई दे रही है. सो देयर इज़ अ ग्रेट वेरिएशन ऑल्सो, माय डियर स्टूडेंट. सो ये लाइन इटसेल्फ सेज दैट द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इनहेरिटेंस इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी स्टडी द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट एंड जीन इन अ पर्टिकुलर. इसी को हम जेनेटिक्स कहते हैं. और इसीलिए ये बार बार मैं एक बार रिपीट करना चाहती हूँ आपको कि न्यू प्रोजेनी जो फॉर्म होती है तो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एक्सेप्ट कुछ माइनर डिफरेंसेस दिखाई देते हैं. द ऑफस्प्रिंग शो ग्रेट सिमिलैरिटी विद द पेरेंट्स में भी. ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होते हैं बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो माइनर वेरिएशन.
इसीलिए हाउएवर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कंपैरेटिवली ग्रेट वेरिएशन। इसमें हम ज़्यादा डिफरेंस देख रहे हैं, ज़्यादा वेरिएशन देख रहे हैं। इनके लिप्स में और आपके लिप्स में दिखने का बहुत ही जो है अलग दिख रहे हैं, बहुत ही अलग आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये हेडलाइन अलग है, इनकी हेडलाइन अलग है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर हेडलाइन ऑफ योर मदर एंड दिस इज़ यू माय डियर स्टूडेंट। सो यू आर सीइंग अ ग्रेट वेरिएशन विद इन द हेडलाइन। Now we are going ahead, we are moving ahead to the next point, that is your heredity। मैं heredity का जब लेसन स्टार्ट करी थी तब भी आपको मैंने बताई थी इसका डेफिनेशन क्या। इट इज़ द पासिंग ऑन ऑफ फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक जेनेटिकली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सो ये डेफिनेशन इटसेल्फ स्पीक्स हियर दैट ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। आपको दिख रहा है ये डॉग की तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है, ब्यूटीफुल डॉग्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज द पेरेंट, डॉग इज द पेरेंट एंड दिस आर देयर ऑफस्प्रिंग माय डियर स्टूडेंट, इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। हमेशा डॉग के बच्चे को ही जन्म देता है, मैंगो ट्री को ही जो है रिप्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल आपको दूंगी कि एक पेरेंट ऑफस्प्रिंग को ही जो है बर्थ देगा। नेक्स्ट यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ कि ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, इसको हम हेरिडिटी कहते हैं। इट इज़ ड्यू टू हेरिडिटी दैट पपीज़ आर सिमिलर टू डॉग। सो दिस पपीज़ आर सिमिलर टू माय डियर स्टूडेंट डॉग। स्क्वैब्स आर सिमिलर टू पीजन। पीजन जो है पीजन के बच्चे ही देता है, वो पीजन के बच्चे को हम स्क्वैब कहते हैं। एंड इन्फेंट्स आर सिमिलर टू ह्यूमन्स। ह्यूमन जो है इन्फेंट्स बच्चे को जन्म देते हैं। सो दे आर द कैरेक्टर्स विच आर सिमिलर। हम अपने माँ बाप के जैसे ही दिखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, यही हेरिडिटी है, यही हेरिडिटी का डेफिनेशन है कि द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक या ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, इसी को हम हेरिडिटी कहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंट ट्रायड्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्रायड माय डियर स्टूडेंट्स? लेट्स सी हाउ डू स्पेसिफिक ट्रायड और कैरेक्टरिस्टिक अपीयर इन ऑर्गेनिज्म। किस तरह स्पेसिफिक ट्रायड या कैरेक्टरिस्टिक अपीयर होते हैं ऑर्गेनिज्म में। लेट मूव अहेड। थ्रो देर आर मेनी सिमिलैरिटीज़ बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग। बहुत सारी जो सिमिलैरिटीज़ हम देखते हैं पेरेंट के बीच में एंड ऑफस्प्रिंग में। देर आर सम डिफरेंसेस टू, हमें बहुत सारे डिफरेंस भी हमें दिखाई देते हैं। दिस सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस आर ऑल द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी। और हम जो सिमिलैरिटीज़ जो देख रहे हैं हम में या हमारे पेरेंट में, और डिफरेंट भी देख रहे हैं, डिफरेंसेस भी देख रहे हैं, ये सारी क्या है? दिस आर द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी माय डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि हेरिडिटी का डेफिनेशन इटसेल्फ स्पीक दैट द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाया जीन इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। माय डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे किसकी? हेरिडिटी की माय डियर स्टूडेंट। इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल इज स्टोर्ड इन डीएनए माय डियर स्टूडेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटीन सिंथेसिस? Protein synthesis is the process in which cell makes protein, my dear students. Store in what? DNA. DNA is nothing but deoxyribose nucleic acid. The segment of DNA which contain all the information for synthesis of a particular protein. So synthesis of what? A particular protein. Proteins are what? Proteins are essential nutrients for the human body, my dear students. And what are genes? I had already said you that the genes is nothing but it is a different, I will say, is the physical basic unit of inheritance. Genes are passed from parent to offspring, my dear students. It is necessary to know the relationship of this protein with the characteristic of organism. तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, relationship of this protein with the characteristic of what? Characteristic of organism, my dear student. Now coming toward the next, we are seeing that in this same inheritance and expression of triad में to understand the concept of heredity, concept of heredity को understand करने के लिए let us consider the characteristic of plant height. plant की height को जानना भी उतना ही ज़रूरी है. We know that there are growth hormones in a plant. What are hormones actually, my dear student? Hormones are the chemical messengers that are secreted directly into the blood which carry them to organ and tissue of the body to exert their function. So now we will see that increase in height of a plant depend upon the quality of the growth hormone. जब plant की हम बोलते हैं ये plant बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है तो the quality of hormone is very good in that plant, my dear student. इंक्रीज हो रही है, प्लांट की हाइट बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रही है. तो हार्मोन क्या है? नाउ हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर दैट आर सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, अगर ह्यूमंस में लेंगे, विच कैरी देम टू ऑर्गन एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी टू एग्जिट द फंक्शन.
इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट की हाइट बहुत जल्दी बढ़ रही है, ह्यूमंस की हाइट बहुत जल्दी बढ़ रही है। हम कहते हैं लड़के की हाइट बहुत जल्दी बढ़ रही है, लड़की की हाइट बहुत जल्दी बढ़ी। वाई? बिकॉज द क्वालिटी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज गुड इन दैट। The quality of growth hormone produced by a plant depends upon the efficiency of the concerned enzyme. Now what are enzyme? मैंने आपको इससे पहले भी बताई हूँ कि enzyme are nothing but it is a biocatalyst which speed up the rate of a chemical reaction. Efficient enzyme produce a great quality of the hormone. Efficient enzyme ज़्यादा quality of enzyme, efficient enzyme रहेगा which produces ज़्यादा quality of hormone due to which the height of a plant increases, my dear students. Now यहाँ पर ये भी लिखा है कि however if the enzyme are less efficient, इतने अच्छे नहीं है, a smaller quantity of hormone is produced leading to a stunting of the plant. अगर कभी efficiency of enzyme अच्छी नहीं होती है प्लांट में तो वो प्लांट की हाइट बढ़ती नहीं है। स्टंटिंग मतलब क्या? प्रिवेंट फ्रॉम ग्रोइंग और डेवलपिंग प्रॉपरली। हम कहते हैं कि इसकी बर्ड जो है बहुत अच्छे से नहीं है, इसका मतलब इट प्रिवेंट फ्रॉम ग्रोइंग और डेवलपिंग प्रॉपरली। हाँ, उसकी हाइट कैसी है? प्लांट की स्टंटेड है। एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम इज़ वेरी गुड, हम कहेंगे उसकी हाइट प्लांट की बहुत ही अच्छे से बढ़ रही है। मूविंग अहेड नाउ वी आर सीइंग दैट व्हाट इज मीन बाय क्रोमोसोम। मैं आपको छोटे टर्म में डेफिनेशन की ओर बताना चाहती हूँ कि क्रोमोसोम इज नथिंग बट दे आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ माय डियर स्टूडेंट डीएनए। अब हम देखेंगे ये क्या कह रहा है डेफिनेशन इटसेल्फ, व्हाट इट स्पीक्स। The structure in the nucleus of the cells that carry the heredity characteristic is called the chromosome. So the structure involved in the structure in the nucleus of the cell जो कैरी करता है the hereditary characteristic, इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। It is made up of mainly of nucleic acid. अब ये nucleic acid and protein दो चीज़ से ये बनी है। Now what do you mean by nucleic acid? Nucleic acid is nothing but they are the biopolymer or large biomolecule essential to all known form of life. The term nucleic acid is the overall name for DNA and RNA. So what do you mean by DNA and RNA? DNA is nothing but DNA is the deoxyribose nucleic acid and RNA is nothing but ribose nucleic acid, my dear student. Protein भी एक अल्फाज आया। What do you mean by actually protein? Proteins are the essential nutrient for the human body. Now moving ahead, what it speaks now? This paragraph what it speaks? क्या क्रोमोसोम हमें बताना चाहता है? During cell division, chromosome can be clearly seen under the compound microscope. So during the cell division के वक्त ये क्रोमोसोम हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। सो द थिंग्स विच वी कैन सी विच वी कैन नॉट सी विद अवर नेकेड आइज वी आर सीइंग इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और उससे भी जो माइन्यूट अगर जो हम और भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते, वी आर गोइंग फॉर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो देर आर सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देर आर 3 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, माई डियर स्टूडेंट। सिंपल आर वेरी सिंपल, कंपाउंड विच यू कैन सी इन द लैब, आपको लैब में जब मैं स्लाइड्स बताती हूँ दैट इज़ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और उससे भी माइन्यूट पार्टिकल जब ये चीज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नहीं हम देख सकते, वी आर गोइंग टूवर्ड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। Now genes which contain the information about hereditary characteristic in coded form are located on the chromosome. So they are where it is located, they are located on the coded form, they are located on the this genes are located on the chromosome. तो मैंने अभी आपको बताई कि chromosome are nothing but they are the thread like structure located inside the nucleus of animal and plant cell. So each species has a specific number of chromosome. हर species को particular number of chromosome रहते हैं। Next वी आर सीइंग दैट क्रोमोसोम्स के अंदर हम देख रहे हैं कि ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए। हर क्रोमोसोम किससे बना है? डीएनए से बना है। आपको यहाँ दिख रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स दिख रहा है आपको। दिस इज योर डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड इट अपीयर्स डम्बेल शेप मिडवे ड्यूरिंग सेल डिविजन। आपको दिख रहा है ब्यूटीफुल ये डायग्राम जो है, आपको दिख रहा है कि किस तरह ये डायग्राम क्रोमोसोम का बना है, माय डियर स्टूडेंट्स। सो देर इज़ अ कंस्ट्रक्टेड रीजन ऑन ईच क्रोमोसोम, इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। और सेंट्रोमियर, यू कैन सी दिस सेंट्रोमियर, माय डियर स्टूडेंट। दिस डिवाइड द क्रोमोसोम इनटू 2 पार्ट। अगर इसको यहाँ से कट हो गया तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ईच पार्ट इज एन आर्म, हर पार्ट क्या है? आर्म है। जैसे कि ये पी आर्म आपको दिख रहा है, दिस इज द क्यू आर्म। तो हर एक जो है पार्ट दैट इज द आर्म, माय डियर स्टूडेंट। द सेंट्रोमियर हैज अ स्पेसिफिक पोजीशन इन ईच क्रोमोसोम।
सो दिस सेंट्रोमियर को स्पेसिफिक पोजीशन होती है हर क्रोमोसोम में। डिपेंडिंग अपॉन दिस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। सो आज हमने बहुत सारी बातें पढ़े। वी हैड लर्न अबाउट हेरिडिटी, वी हैड लर्न अबाउट वेरिएशन। मैं आपको फिर से एक बार हेरिडिटी का मीनिंग बताती हूँ और वेरिएशंस का फिर से एक बार मैं मीनिंग बताती हूँ कि हेरिडिटी इज़ नथिंग बट इट इज़ द पासिंग ऑन ऑफ फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक जेनेटिकली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। दिस इज़ योर डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी। वेरिएशन क्या है माय डियर स्टूडेंट? वेरिएशन इज़ नथिंग बट इट इज़ अ चेंज और स्लाइट डिफरेंस इन अ कंडीशन। इसका डेफिनेशन है वेरिएशन का माय डियर स्टूडेंट। वी हैड लर्न अबाउट जीन के बारे में हमने पढ़े थे। इसमें हमने प्रोजेनी पढ़े हैं। प्रोजेनी आर नथिंग बट दे आर द ऑफस्प्रिंग माय डियर स्टूडेंट। इसमें हमने आज जो है प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में देखे। वी हैड लर्न अबाउट क्रोमोसोम, वी हैड ऑल्सो लर्न अबाउट इनहेरिटेंस। सो ये तमाम बातें हमने जो है पढ़े हैं। अब जो बचा हुआ है दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन दिस देर आर 4 टाइप ऑफ क्रोमोसोम। ये हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और यहाँ पर मैं अपना लेसन को कंप्लीट करती हूँ। जो भी बच गया है हम स्टेप बाय स्टेप जो है हर एक पॉइंट्स की ओर जाएंगे, हर एक पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे। आज ही हमने ये लेसन को स्टार्ट किए हैं। दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 16 हेरिडिटी एंड वेरिएशन। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ें स्मूथली हम जाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि क्या हेरिडिटी है, क्या वेरिएशन है। ये चैप्टर हेरिडिटी एंड वेरिएशन हमें क्या बतलाना चाह रहा है, इसमें कौन से मेन पॉइंट्स हैं। सो यहाँ पर मैं अपना लेसन को कंप्लीट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।